यू सी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका लोगो आपको पता है। जितने भी खाद्य पदार्थ है उसके ऊपर एक FSSAI लिखा होता है इन डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस, लाइक इट इज शोन देयर FSSAI. So this is the logo of Food Safety Standard Authority of India. Now this Food Safety Standard Authority of India has got total sanction strength of post from different category, means starting from food safety officers, then assistant director, director, deputy directors, joint director, like all executive director, advisors, again with some lower division posts. So all total posts there are 850, and we have, as of now we are filled in how much? Around 450. So remaining post is also vacant. We are every year recruitment are being done. Now there are two types of post. One is technical post, one is non-technical post. In every category there is technical post and non-technical post. Under technical post, what are the qualifications? The students should know what are the qualification prescribed for the technical post. And as well as the non-technical post, you know, all the non-tech, we have, what is recruitment process? We have our own recruitment procedures. Every post has to be advertised in the websites. And what is your website? www.fsci.gov.in. In this website, you will get all the information. I request the teachers, once in a while you can just open that website and show it to the students. You will get www.fsci.gov.in. This is the main website of FSSAI, where you can get all the information. Now, coming to the qualifications, it includes, under the technical qualification, it includes science background, minimum BSc and MSc, then doctorates. One is science, second one is BTech, MTech, PhD in engineering, food technology, agriculture engineering, dairy science, microbiology, biotechnology, so all related fields. So there is huge scope in FSSAI because posts are filled up. You students, when you will be becoming, after 15 years, you will be eligible, then that time there will be different post, vacancy will be there. So these are your technical qualification. And non-technical IT, we have got specialized IT cells. MBAs are required. And we have got SPCD department, Social and Behavioral Change department. You know what do you mean by social and behavioral change? This is a department. You see, let me just tell you what job FSSAI does. FSSAI क्यों आया था? FSSAI का पहले 2006 के पहले different central government and the state government, particularly health department, they used to implement different laws and orders for implementation of food. Now all the departments and all the act and orders were merged into a single act. That act is called Food Safety Standard Act. And वो एक्ट कब पास हुआ? पार्लियामेंट में 2006 में पास हुआ. उसके बाद अथॉरिटी बना, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी बना. इट इज एन ऑटोनोमस रेगुलेटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर. वो जब बना 2008 में बना, उसके बाद आदमी आना चालू हो गया, अथॉरिटी बना, फिर डिफरेंट पोस्ट वी आर फिल्ड अप. देन एक्चुअल काम स्टार्ट हुआ 5th August 2011. So almost we are 11-12 years old.
ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमारी काम क्या है? हमारी काम है लाइसेंस रजिस्ट्रेशंस। किसको लाइसेंस देना है, किसको रजिस्ट्रेशन देना है, उसके बारे में बता दो। फार्मर जो उगा रहा है उसको छोड़ दो, जो खा रहा है कंज्यूमर उसको काट दो, मतलब दोनों एक्सट्रीम एंड को काट दो। बाकी बीच में जितने रह गए सबको लेना है लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन सबको लेना है। तो जो छोटे छोटे पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर होते हैं, जैसे यहाँ पे मोमो बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहे हैं, इनको सबको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन 100 रुपया होता है। ये हमारी एनफोर्समेंट काम है। उसके बाद लाइसेंस 2 तरीका होता है, स्टेट लाइसेंस एंड सेंट्रल लाइसेंस। उसका क्राइटेरिया है, उसको हम इतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन सबको लेना है जो फूड हैंडल कर रहा है। जो फूड को हैंडल मतलब व्हाट डू मीन बाय हैंडल? मीन्स रिसीव, प्रोसेस एंड गिव इट, उनको लेना है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस एनफोर्समेंट एक्टिविटीज हम कर क्या रहे हैं? हम सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कर रहे हैं। We are creating an impressions among the consumer mind that this is the time now. You have to change your food habits. And हम लोग जैसे जैसे नीड फेल्ट हुआ है, जैसे जैसे हमने आइडेंटिफाई किया है डिफरेंट सेक्टर, उसी सेक्टर में काम किया। अभी आपको पता है रूको व्हाट डू मीन बाय रूको? रूको इज वन ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ FSSAI, RUCO। रूको मीन्स रीयूज्ड कुकिंग ऑयल। आपके घर में आप समोसा तलते हो, मोमो तो स्टीम में होता है। कोई भी चीज़ जब तलते हो कितने बार ऑयल यूज करते हो? किसी को पता नहीं। कोई 3 बार, कोई 4 बार। जानते हो उसमें क्या होता है? जैसे आप 3 बार के 2 बार के 3 बार कर लेते हो उसी ऑयल को यूज, फिर उसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड फॉर्मेशन होता है। दैट ट्रांस फैटी एसिड शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए हम लोग एक स्कीम लाया है कॉल्ड रूको। वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट ऑयल्स यूज्ड बाय हलवाई, बाय इंडस्ट्रीज, बाय रेस्टोरेंट चेन। उनके एवरी वीक हमारी कलेक्टर उसके दुकान में जाते हैं, उनके होटल में जाते हैं। अभी वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दी होटल्स। होटल से कलेक्ट कर वो यूज्ड ऑयल कहाँ भेजते हैं? वी आर सेंडिंग इट टू बायोडीजल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मीन्स वी हैव आइडेंटिफाइड हाउ दिस used cooking oil can be converted into biodiesel manufacturing. So in entire northeast we have only one biodiesel manufacturer, that is in Kolkata. तो वहाँ हम भेज रहे हैं। Now we have identified soap manufacturers, not the bath soap, washing soap, because lot of used cooking oil is used in soap manufacturing unit. Lot of oil is used lubricant manufacturing unit. There also we are identifying, and through our collection agencies we call it as aggregator, we are sending it. तो ये क्या बहुत काम नहीं है? We are trying our best that, क्योंकि उस ऑयल को आप जानते हैं, उस ऑयल में आप घर में खाना बनाते हो, महिलाएं उसको यूज करते हैं, एक डब्बा में रख देते हैं, कभी मन आया तो ड्रेन में डाल देते हैं। जानते हैं ड्रेन में डालने के बाद आपकी एंटर पाइपलाइन चोक हो जाए, फिर then you have to spend money to call a plumber to get it rectified. You got my point? So those oil in Ghaziabad, I had identified one NGO. He is collecting oil from every residence through their security person. So like this, if the people will start, and I invite here in this Mela, if any aggregator willing to participate with us, he should apply to us. We will give them certificates, enrollments, so that he can start doing it. So this is one of the RUCO scheme that we have another scheme called Save Food, Share Joy. What do you mean by? जे खाना वेस्ट मत करो, डोंट वेस्ट द फूड, उसको आप किसी नीडी को दान कर दो, क्योंकि अन्न दान से कोई पुण्य दान नहीं होता है, ये तो सभी जानते हैं। इसलिए हमने एक स्कीम लाया
डे जो होटल रेस्टोरेंट में आप फैमिली के साथ जाकर खाना खा रहे हो, ऑर्डर कर दिया लेकिन खा नहीं पाए, एंड होटल इंडस्ट्रीज कैनॉट कीप दोज, they have to just throw it out in the garbage. So it is a national loss. So we brought that scheme called Save Food, Share Joy. Under this scheme we have invited NGOs, non-governmental self-help groups, and the principle is they are collecting those used, means reused, not used, those wasted food. Means suppose you people are eating, you left out. Then those foods are collected by agencies in different containers. Then it is being served to the needy, poor. Another scheme we are having, but this scheme is this scheme is very running very nicely in Gujarat. आप लोग के बीच में कोई गुजरात जाएंगे देखेंगे उनका सभी रेस्टोरेंट में चाहे छोटे हो बड़े हो उसमें बड़े इस तरीके से पैनल लगा होता है, डोंट वेस्ट फूड। वहाँ पे एक एनजीओ उसने क्या किया, एक मारुति वैन में डिफरेंट कंटेनर, मतलब हरा पीला डिफरेंट कलर कोड में होटल में एक घंटे में कलेक्ट कर पुअर आदमी को खिलाते हैं। दैट इज ए वेरी गुड जॉब। But other state also we are trying it because there is lot of registrations. When people are resisting, we are trying to remove that ethos. That's why I told you, we are from SBCD, social and behavioral change. We try to change the behavior of the consumers. Now this is one of the scheme. Second scheme, Bhog. Bhog means BHOG. Blissful hygienic offering to God. नमस्ते, मेरो नाम मिकमग्रे मिश्रपा हो। म आज चाहिँ यहाँ हाम्रो चौरस्तामा मिलेट मेला भन्ने हुँदैछ। मिलेट मेला चाहिँ बेसिकली गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको एउटा इनिसिएटिभ हो। यो चाहिँ हाम्रो कोदोको जुन चाहिँ कन्जम्सन कम्ती हुँदैछ यसलाई बढावा दिनु लागि चाहिँ यो एउटा अवेरनेस क्याम्प हो र यसको स्लोगन चाहिँ सही भोजन बेहतर जीवन। र हाम्रो जस्तै लोकल पर्सपेक्टिभ हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले हामीले ज्यादा चाहिँ पहिला राइस र आटा खान्छौँ, तर त्योभन्दा पहिला जब यो ग्रिन रेभोल्युसन भन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले याद गर्नु भने हाम्रो गाउँ बस्तीमा म धेरैजना मान्छेहरू भेट्छु, हाम्रो बुजुर्गहरू, उहाँले भन्नुहुन्छ कि पहिला हामीले दसैँमा मात्रै भात खान्थ्यो है, मकैको चामल खान्थ्यो, कोदोको पेटो खान्थ्यो। भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ पहिलाको फुड ह्याबिट छ त्यसलाई नै अब गभर्मेन्टले इन्करेज गरेको र कोदोको जुन चाहिँ उब्जाउ छ या प्रोडक्सन र फार्मर्सलाई प्रोडक्सन र जनरल पब्लिकलाई चाहिँ कन्ज्युम्सन बढोस् भनेर नै यो मेला गरेको हो। म सिटोङ खरसाङबाट, सिटोङ जिसिबीबाट, र हामी चाहिँ सद्भावना सर्निबल दलबाट चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ मिलेट्स मेला छ है यहाँनिर इन्भाइट गर्नुभएको थियो र यहाँनिर एट्रीबाट हामीलाई डाइरेक्टर साहबले र त्यहाँदेखि चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर हामी 10वटा आइटम लिएर चाहिँ यहाँनिर उपस्थित भएका छौँ है। जति पनि अब कोदोको चिजहरू बनाइन्छ होइन, अर्ग्यानिक जुन चाहिँ हामी चाहिँ अर्ग्यानिक घरकै उमारेर बनाएर चाहिँ हामीले ल्याएर यहाँनिर प्रदर्शन गर्नुको निम्ति राखिएको छौँ। यो चाहिँ फायर ब्रिगेड हो। यसलाई चाहिँ हामीले घरमा अब खाल्टा खनेर होइन, यो जुन चाहिँ कोदोको यो डाक्ला हुन्छ यसको जलाएर चाहिँ यो हामीले तयार पारेको छौँ है। यो चाहिँ अब एउटाको दाम चाहिँ 30 रुपिस छ। यो चाहिँ 1 घन्टा 1.5 घन्टा चाहिँ जल्छ। यो चाहिँ अब रुमभित्र ताप्दा पनि यसले केही असर पार्दैन, अरू केही मिसाएको छैन, खालि माटो अनि कोइला जम्मा गरेर मात्रै यो बनाएको छौँ। यो चाहिँ यो कालो कोदो र यो कालो कोदोकै हामीले पिठो ल्याएको छौँ र यो सेतो कोदो अनि यो सेतो कोदोकै पिठो ल्याएको छौँ र यो कोदोको जाँड हो। यो पनि अब कोदोकै जाँड हो। यो कोदो हो, यो कोदोको बाला, यो जुन चाहिँ रोपिन्छ है, रोपेर बनाएको यो बाला हो। यो पनि 2टा भेराइटी छ है, यो लङ्गे कोदो अनि यो फ्याङ्ले कोदो, जल्ले कोदो हो। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ कोदोको यो पातमा बनाएको रोटी छ। यो चाहिँ कोदोको रोटी पोलेको तावामा बनाएर यो चाहिँ रोटी हो।
मोमो आन्टी यो चाहिँ कोदोको ढेँडो हो यो बनाएको यो चाहिँ कोदोको मोमो बनाएको यसभित्र चाहिँ गाजर अनि मेवा ग्रेट गरेर चाहिँ लागेको छ यो कोदोको पकौडा बनाएको छ यो कोदोको प्याजी बनाएको छ अनि यो कोदोको चाहिँ यो चप बनाएको छ अनि यो कोदोको सुप बनेको छ हजुर यो चाहिँ कोदोको र अनि गहुँ मिसाएर चाहिँ हामीले यो मिक्स यो चाहिँ जाँड बनाएको यो चाहिँ कोदोको वाइन बनेको छ यति नै छ हामीले चाहिँ कोदो अब फलाएर होइन यो कहिले रोप्छ भन्दा चाहिँ जेठ महिनामा रोपिन्छ नेपाली महिनामा है जेठमा चाहिँ अब छिट्ने सिजन हुन्छ त्यसलाई छिटेर ड्याङ बनाएर छिटेर उम्रेपछि साउन महिनामा चाहिँ हामीले रोप्छौँ बारीमा लगाएपछि चाहिँ कति बेला चाहिँ फसल तयार हुन्छ यो तयार हुन्छ भनेर म्याच्योर तयार हुन्छ त डिसेम्बर महिनामा चाहिँ यो चाहिँ तयार हुन्छ अन्त यो तयार भएपछि चाहिँ हामीले यस्तो हुन्छ है यो भएपछि हामीले पिसेर झातोमा भए पनि अहिले चाहिँ अब यो झातोमा पिस्थ्यो पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले मेसिनमा लगेर पिसेर चाहिँ तयार बनाएर चाहिँ बनाएको यो चाहिँ एक्चुअली यो जुन चाहिँ इट राइट मिलेट्स मेला भनेर जुन चाहिँ फसाइ छ FSSAI-ले यो चाहिँ यहाँ दार्जिलिङमा चाहिँ यो इभेन्ट अर्गनाइज गरेको हो र यो किन गरेको भन्दाखेरि 2023 है 2023 चाहिँ एक्चुअली विश्वभरि नै एउटा इन्टरनेसनल मिलेट इयर भनेर चाहिँ घोषित गर्यो है जसरी हामीले हरेक साल जुन जुलाईतिर इन्भाइरोमेन्ट डेहरू मनाउँछौँ नि त्यस्तै प्रकारले यो 2023 चाहिँ पुरा 2023 नै इन्टरनेसनल मिलेट डे इयर भनेर जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कोदो वर्ष भनौँ न भनेर चाहिँ घोषणा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसकै एउटा पार्टको हिसाबमा चाहिँ यो इभेन्ट चाहिँ फसाइद्वारा चाहिँ यहाँ आज दार्जिलिङमा हुन गइरहेको छ भविष्यमा अझै अन्य अरू जग्गामा हुनेवाला रहेछ यिनीहरूको है सायद सिक्किममा हुन्छ होला कालिम्पोङतिर हुन्छ होला नर्थ इस्ट अदर स्टेटमा हुन्छ होला जहाँ जहाँ चाहिँ कोदोहरूको चाहिँ उत्पन्न हुन्छ त्यसरी नै आज यो पनि हुँदैछ र हाम्रो यो SHG-को दिदीबहिनीहरू आएर आफ्नै उहाँहरूको सिटोङ एरियाबाट आउनुभएको र त्यहाँनिरै उम्रेको कोदोहरूबाट चाहिँ उहाँहरूले विभिन्न प्रकारको व्यञ्जनहरू लिएर चाहिँ यहाँ प्रदर्शन गर्नुहुन्छ